Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उमंग और उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his far-sighted speech. Thank you, President Biden, for your friendship. Friends, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India. This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the US. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden. Friends, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। Friends, about 3 decades ago, I came on a visit to America as a common man. At that time, I had seen the White House from outside. After becoming the Prime Minister, I have come here many times, but today, for the first time, the doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है।
The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability, and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations and various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप्स हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। I wish for, and the 1.4 billion people of India wish with me, for India's tricolor and America's stars and stripes to always keep flying higher and higher.
President Biden, Dr. Jill Biden, once again, I thank you for your kind invitation, for your warm welcome and hospitality, also on behalf of 1.4 billion people of India. Jai Hind, God bless America. Thank you very much. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के संबोधन के बाद दोनों ने गले लगकर एक दूसरे का स्वागत करने के बाद अब डिनर के लिए यहां से रवाना होंगे। रुक कर लेते हैं सीधे निशांत और रोहित हमारे साथ मौजूद हैं व्हाइट हाउस से ही। निशांत, कई अहम बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और जो बाइडेन ने भी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि कैसे 21वीं सदी में भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, का जो सहयोग है, वो बहुत अहमियत रखता है। सुमेरा, देखिए बड़ी बात क्या है, यहाँ पर दोनों का फोकस जो है वो बड़ा क्लियर है। दोनों डेमोक्रेसीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है, अगर जब जो बाइडेन ने बात की तो उन्होंने किस चीज़ की बात की? उन्होंने क्वाड की बात की, उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात की, उन्होंने यूक्रेन की बात की, उन्होंने पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना एड्रेस शुरू किया तो उन्होंने अमेरिका की तारीफ करते हुए कहा, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका कि आज से कई साल पहले मैं एक कॉमनर की तरह आया था तो व्हाइट हाउस के बाहर था, पहली बार इतने सारे भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस खोला गया है। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि पूरा भारत जो है वो गर्व से महसूस कर सकता है, यू आर एट पार, आप इक्वल्स हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि अब इसके बाद जो बायलैटरल्स होने वाली हैं, उन बायलैटरल्स में भारत और अमेरिका के बीच में और मजबूत रिश्ते और मजबूत संबंध बनेंगे, और वो बायलैटरल्स जो हैं इन दोनों के रिलेशंस को और अच्छे से डिफाइन करेंगी हर बार की तरह। यहां पर देखिए, अमेरिकन्स आर नोन फॉर देयर फैनफेयर, और वो फैनफेयर आपको दिखाई दे रहा है सुमेरा। लेकिन नाउ कम्स द बिजनेस। अब बिजनेस की अब बात होगी उन सारे इशू की जो पूरी दुनिया जानना चाहती है, और इन इश्यूज में पीस एंड सिक्योरिटी की बात होगी, इन इश्यूज में डिफेंस की बात होगी, इन इश्यूज में बात होगी किस तरीके से और सारी जो अभी बिजनेस जो है उस पे क्या होगा, ये सारे बैक टू। जी हाँ, और सीधे रोहित का भी रुख कर लेते हैं। रोहित, अब गए हैं, मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात के साथ साथ खाना भी होगा, क्या कुछ है और आगे का जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या डिटेल्स, क्या इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको हासिल हुई है? देखिए, यहाँ पे अभी फिलहाल बस हम यहाँ से, हमें यहाँ बायलैटरल मीटिंग में लेके जाया जा रहा है सुमेरा। हम यहाँ से बायलैटरल मीटिंग्स होगी, उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो कैपिटल हिल पे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और मैं एक चीज़ अपने सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब नेशनल एंथम बज रहा था 21 तोपों की सलामी साथ में दी गई और लोगों को गूज बम्स फील हुए, जो भारतीय थे उनको गूज बम्स फील हुए। ये बहुत प्राउड मोमेंट है सुमेरा। जी हाँ, क्योंकि आप खुद भी एक भारतीय अमेरिकी हैं और वहाँ रहते हैं, तो वो आप महसूस कर पाए होंगे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, वहाँ पर मौजूद जो भारतवंशी हैं उनसे अगर आप बात करें और उनकी प्रतिक्रिया भी अगर हम जान पाएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, जिल बाइडेन बालकनी पर आकर वो तमाम लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए हैं उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बात करते हुए भी जिल बाइडेन और जो बाइडेन के साथ। वापस निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, देखिए, प्रधानमंत्री भी वेव कर रहे थे, जिल बाइडेन भी वेव कर रही थी, वो तमाम लोग और वो भारतवंशी जो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, जिनके लिए खास गर्व का पल है, पूरे भारत के लिए गर्व का पल है, लेकिन भारतीय अमेरिका के लिए खास तौर पर जिनका जिक्र किया, अगर आप उनसे भी बात कर पाएं और उनकी प्रतिक्रिया जान पाएं। क्या कहेंगे, कैसा लगा? ओके सुमेरा, हमें यहां से निकलना है, लेकिन मैं जाते जाते भी कोशिश करूंगा हमारे ये जो भारतीय हैं उनसे बात करूं। कैसा लगा? मोदी जी ने कहा कि भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस खोल दिया गया है। क्या कहेंगे यहां पर जो हुआ उसके लिए? ये है इनका जोश
और ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं सुमेरा। अब बायलैटरल शुरू होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले एक और रिएक्शन। कैसा लगा आपको? क्या कहेंगे मोदी जी ने जो कहा उस पर? क्या कहेंगे जो मोदी जी ने कहा उस पर? मोदी जी ने कहा व्हाइट हाउस भारतीयों के लिए खोल दिया गया। सो मेरा प्रोटोकॉल के तहत अब हमें यहां से निकलना होगा। बैक टू यू इन द स्टूडियो। जी हाँ निशांत, हम समझ सकते हैं और डबल बैरिकेडिंग है सुरक्षा को के मद्देनजर, इस वजह से वो तमाम प्रतिक्रियाएं जो वहां पर मौजूद लोग देना चाहते हैं वो सीधे तौर पर नहीं आ रही, लेकिन मोदी मोदी की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी और इसी की बात की भी जा रही थी। इससे पहले भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बात कही, हम उस पर भी आएंगे कि उन्होंने समझौते के बारे में क्या कहा और समझौते किस तरह से अहमियत रखते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे वो एक कॉमनर की तरह आए थे तो बाहर से देखा था, प्रधानमंत्री के तौर पर अंदर गए हैं कई बार, लेकिन आज भारतीयों के लिए इतनी बड़ी संख्या में दरवाजे खोले गए व्हाइट हाउस के लिए, तो अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत की जरूरत है, दुनिया में कूटनीति के स्तर पर भारत की जरूरत है, लेकिन इन तमाम भारतवंशियों की भी जो ताकत है उसका भी एहसास हो रहा है हम सबको। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को डिस्क्राइब किया कि एक कॉमनर की तरह आए थे और बाहर फ़ोटो खिंचवाए थे, वही हम एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव साहब के साथ हम शेयर कर रहे थे वो फ़ोटो। उसमें दिख रहा था एक आम भारतीय की तरह वो खड़े हैं और आज वही आम भारतीय, खास भारतीय होकर उस भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी डियास्पोरा, जिसके मूल के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और यही नहीं, अल्फ़ाबेट, गूगल, एडोबी, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये सब उस डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करते हैं और उस डायस्पोरा की इतनी ताकत है कि आज हम अपने आप को कह सकते हैं एक भारतीय हैं। और ये परंपरा की जो शुरुआत हुई थी उसका आज ये नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी को उस स्टेट वेलकम मिल रहा है। और यही नहीं, भारत की शक्ति का भी ये प्रदर्शन है, जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है, जिस तरह से भारतीयों को ये गर्व का महसूस कराया गया है और जिस तरह से आपके TV9 कवरेज हुई है उसके हर भारतीय अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था कि शायद वो वहाँ उपस्थित है। खासकर निशांत और रोहित का कवरेज ये दिखाता है कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं, भारत का ये जो वहाँ तक पहुँचा है जिस स्टेज पर आज हम हैं, क्या इसको अमिताभ जी 30 साल की उन्होंने बात की, तो क्या हम उस सफर के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉमनर की तरह, एक आम आदमी की तरह वहां पहुंचे, वो तमाम भारतवासी जो वहां पर जाते हैं एक आम नागरिक की तरह और फिर अहम मुकाम तक पहुंचते हैं, और इसका जिक्र जो बाइडेन ने किया कि किस तरह की कर्मठशीलता है, किस तरह से मेहनत करते हैं और वो कमला हैरिस के रूप में वो रोज व्हाइट हाउस में देखते हैं। तो भारतीय डायस्पोरा की जो मेहनत है उसको भी स्वीकार कर रहा है अमेरिका और उसका भी जिक्र किया जो बाइडेन ने। बिल्कुल। और मतलब मोदी जी ने ये साफ दिखा दिया कि वो एक कॉमनर की तरह आए थे और आज वो दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए हैं। यानी ये उनकी मजबूती है, उन भारतीयों की मजबूती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो भारत की भी मजबूती है। और इसी मजबूती को रिकॉग्नाइज कर रहा है अमेरिका जब वो उनके द्वार खोल रहा है या इनको स्टेट गेस्ट बना रहा है। तो हम सब भारतीयों का एक प्रदर्शन है कि हम एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व वहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं और वो एक कॉमनर की तरह जिस तरह आए थे, जैसा उन्होंने कहा। जी हाँ, जी हाँ। और इसकी पी.के. श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इससे पहले भी हमारी जो बातचीत हुई है वो बहुत सहयोग के स्तर पर बातचीत हुई है, आज भी जो बातचीत होगी वो बहुत सकारात्मक होगी, भारत के लिहाज से बहुत अहमियत रखती है आज की भी मुलाकात, क्योंकि बहुत कुछ हम हासिल करने वाले हैं। जो बाइडेन ने भी कहा कि नई पीढ़ी के लिए हम तकनीक को साझा करेंगे। देखिए सुबेरा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। पहली बात तो ये कि जो हम यहाँ भी देख रहे हैं भव्य प्रदर्शन, वो हम सारे भारतीयों का जो उनका संगठित शक्ति है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी।
और जो भव्य स्वागत हो रहा है वो शायद भारतीयों के अंदर एक बहुत गर्व पैदा कर रहा है, चाहे वो भारतीय मूल के मैं माफ कीजिएगा, आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगी क्योंकि हम ये तस्वीर अपने दर्शकों को बता दें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, और फिर आप अपना जो विचार है वो आगे रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1963 में गए थे स्टेट विजिट पर, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे जब हमने न्यूक्लियर डील 123 साइन की थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर गए हैं। ये भारत का जो सफर है, भारत की जिस तरह से ताकत बढ़ी है वर्ल्ड स्टेज पर, उसको भी दर्शाता है ये 3 तस्वीरें। बिल्कुल सुमेर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सफर रहा है और अब हम एक जगह पहुंचे हैं, शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। लेकिन एक खास बात आप और देखिए, जो आपने पहले चित्र देखे उसमें हमने वहां जो वेशभूषा है वो पूरी तरह से भारतीय नहीं है। अभी मोदी जो है वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं भारतीय वेशभूषा को, और आपने देखा जो वहां भारतीय इकट्ठा हुए हैं वो भी अपनी भारतीयता को दिखा रहे हैं। इसका मतलब कल्चर भी वहां पहुंच रहा है और वहां से ब्लेंड कर रहा है। लेकिन आपने जो बात कही कि आगे क्या होगा, ये सब तो एक मान लीजिए एक ऑप्टिक्स है। आगे है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अभी बात हो रही है, जिसमें ये बात चल रही है कि 80% टेक्नोलॉजी हम शेयर कर सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 80% एरो इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर करना किसी ऐसे देश के साथ जहां अभी तक शेयर नहीं किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या इसे हम मील का पत्थर कह सकते हैं? मील भारत, का मैं क्या हम आपको इसे ये शताब्दी का पत्थर कहूंगा, क्योंकि हर देश अपनी तकनीक को, अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। मैं जानता हूं, इस क्षेत्र में रहा हूं पिछले 48 साल से, मैं इस बात से विस्मित हूं। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि 80% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। मैं अभी भी शंका में हूं कि बात जो कही जा रही है क्या वो वाकई धरातल पर आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मैं आपको थोड़ा सा सुमेरा जी बता दूं, जो F-35 बना था उसको डेवलप करने में $1 ट्रिलियन का R&D एक्सपेंडिचर हुआ था। तो वो एक्सपेंडिचर बहुत होता है। और दूसरी बात, अगर वो टेक्नोलॉजी आप किसी देश को देते हैं, उस देश के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि किसी भी, जैसे जी का इंजन हम ले रहे हैं, उसमें जो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है, उसकी IPR किसी और कंपनी के पास होगी। तो वो सारा इकट्ठा कर पाना और उस सब पे प्रभाव डाल करके भारत देश में उसका ट्रांसफ़र होना 80% में, वो सारी चीज़ें शामिल होंगी। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा शताब्दी का पत्थर है। जो आप कह रहे हैं ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। आप जो कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सकारात्मक रहने वाला है और ये डील होने वाली है। अमिताभ जी, इसे कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीके श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये होता नहीं है आमतौर पर, विश्वास उन्हें अभी भी नहीं हो रहा है कि ये होने वाला है, इस तरह से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इसे क्या हम इस कॉन्टेक्स्ट में अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये दर्शाता है कि भारत की अहमियत दरअसल क्या है इस समय अमेरिका के लिए, उसके लिए कितना जरूरी है, कितना अहम है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, और भारत भी बहुत बेहतर तरीके से उसे निगोशिएट कर पा रहा है। देखिए, हमारे सोवियत संघ और बाद में रूस के साथ संबंध क्यों बने डिफेंस रिलेशनशिप, क्योंकि सोवियत संघ और रूस दोनों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार होते थे। अमेरिका के साथ ये बहुत मुश्किल था कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सके, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसमें कैपिटल जुड़ा है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें कई सारी कंपनियां हैं, जो कोई उसके व्हील बना रहा है, कोई उसके नट बोल्ट बना रहा है, जो 400 पार्ट पुर्जे जो राहुल जी बता रहे थे इसके पहले उसमें लगते हैं, उसमें 400 लोग या 400 फर्म इन्वॉल्व होंगे। उनको कन्विंस करना कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, अभी तक ये कांग्रेस से अप्रूव नहीं हुआ, कांग्रेस अप्रूव कर देंगी ऐसा माना जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि उसको सोवियत संघ से और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था, आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है या स्वदेशी का जो प्रोग्राम है, उसको इंप्लीमेंट करना, ये एक डिप्लोमेटिक कू मैं इसको कहूंगा अंग्रेजी में। अगर भारत मतलब मोस्ट सॉट आफ्टर पार्टनर है, यानी इस वक्त रूस भी चाहता है कि भारत के साथ संबंध बेहतर हो, जो पुराने रिश्ते हैं वो वैसे ही बने रहें। अमेरिका चाहता है कि रिश्ते और बेहतर हो, बेहतर से बेहतर होते जाएं ये संबंध, अमेरिका उसके लिए कोशिश कर रहा है। यानी भारत ने अपनी विश्वसनीयता को इस हद तक बढ़ाया भी है और वो बैलेंस भी बनाया है दोनों के बीच, या दुनिया में एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी की है। क्या उसकी वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि भारत एक बहुत बेहतर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी विदेश नीति का अहम योगदान है?
अमिताभ जी, बिल्कुल, अगर आप उस तरह से भी देखें तो भारत की जो छवि हुई है, और भारत जैसे राफेल डील को ही अगर आप लें तो राफेल डील का जो ऑफसेट था वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि HAL इसको मैन्युफैक्चर करेगा, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इनपुट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एयर वाइस मार्शल बार बार बता रहे हैं कि इसमें सीक्रेसी, इसमें टेक्नोलॉजी की चोरी ना हो, कोई R&D कोई चोरी ना कर ले, कोई नया पैरेलल एक नेटवर्क नहीं खड़ा कर दे, जिस तरह पाकिस्तान में पूरी तरह न्यूक्लियर बम चोरी से बनाया गया था। तो उसको रिस्पॉन्सिबल बना के भारत को देना ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये हमेशा नहीं होता इस तरह के टेक्नोलॉजी। और अब तक हम अमेरिका से सिर्फ 10% डिफेंस ट्रेड क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए ही कर पा रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए अमेरिका में डिप्लोमेटिक, ब्यूरोक्रेटिक और कांग्रेशनल हर्डल्स बहुत हैं, जिसको हमने ओवरकम किया, और मुझे लग रहा है ये शुरुआत है और आगे के दिनों में भी ऐसा होगा। पीके श्रीवास्तव जी, किस तरह से बदल जाएगी भारत की एरोडायनामिक इंडस्ट्री, किस तरह से हमारी जो क्षमता है वो बदल जाएगी अगर हम ये सब हासिल कर लेते हैं जो अभी आज कहा जा रहा है कि डील हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच? तो सुमेरा जी, अगर इसको हम थोड़ा सा क्रमबद्ध समझने की कोशिश करें तो पहली तो चीज़ ये है कि अगर ये आता है, मैं अभी भी अगर लगा रहा हूँ 80% टेक्नोलॉजी, डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है। हमने बहुत डील्स की हैं, 70% तक पहुंचने में हम उसको पूरा एक तरीके से मानते थे पूरी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो गया है, बाकी हम इंडिविजुअली कर सकते थे। लेकिन इसके बात यह है कि अमेरिका का भारत के ऊपर एक स्ट्रेटजिक ट्रस्ट आ रहा है। स्ट्रेटजिक ट्रस्ट का मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म है। ये पहली बार हो रहा है कि इतना स्ट्रेटजिक ट्रस्ट एक कंट्री के ऊपर दूसरी अमेरिका जैसे कंट्री का विश्वास हो रहा है। और जो आपने बात कही है कि ये कैसे चेंज करेगा हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है जी, पूरा अल्टर कर जाएगा। आपके पास जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है अभी एक पर्टिकुलर स्टेज में है, ये एकदम से आप देखेंगे एक्सप्लोजन होगा, और वो एक्सप्लोजन जो है हमें ये सामर्थ्य देगा कि हम अपने एरो इंजन को, जो हम कावेरी बनाने की चेष्टा करते रहे इतने डिकेड से, उसमें हम सफल हो सकेंगे। तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आएगी, आपके इंडस्ट्रियल सिस्टम में इकोसिस्टम में इतनी शक्ति आएगी कि आप फिर आगे का जो काम है, चाहे वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या नेवल वर्जन हो, उसमें फिर आप अच्छी तरह से आ सकेंगे। और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इससे पहले कब हमने अहम डील की है अमेरिका के साथ। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे तब हमने गेहूं की डील की थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे, पूर्व प्रधानमंत्री, तब उन्होंने न्यूक्लियर डील की थी, और अब जेट इंजन की डील हो रही है। अपने आप में ऐतिहासिक है ये जो डील हो रही है, ये जो समझौता हो रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत को बहुत फायदा पहुंचाएगा, लेकिन भारत अमेरिका के संबंधों की दृष्टि से भी बहुत अहमियत रखती है ये डील, क्योंकि बताती है कि किस तरह का विश्वास एक दूसरे पर देखने को मिल रहा है। अमिताभ जी, हमने देखा इस बातचीत के दौरान भी कहा जो बाइडेन ने कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, और उन्होंने इस बात को एक बार नहीं कई बार रेखांकित किया कि भारत एक बहुत जिम्मेदार देश है, भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है, और उस जिम्मेदारी को भारत ने बखूबी निभाया है तमाम चुनौतियों का। देखिए, ये तस्वीरें हमें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। बातचीत की शुरुआत, बायलैटरल की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पर उन दोनों की जो ये बातचीत है, द्विपक्षीय वार्ता है, उसके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इस वक्त मीडिया को अंदर बुलाया गया है। सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। एटी 80% तो मैं अभी मान नहीं रहा हूँ। 80% मैं मान नहीं रहा हूँ। तो देखिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया को बुलाया गया अंदर। द्विपक्षीय बातचीत शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके बाद उनकी जो द्विपक्षीय वार्ता है उसकी शुरुआत होगी, अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा था कि अब से पहले भी हमेशा सकारात्मक
माहौल में बातचीत हुई है और आज भी जो बातचीत होगी वो सकारात्मक माहौल में होगी। भारत के लिए भी और भारत के हित के लिए भी बहुत अहमियत रखती है बातचीत, लेकिन अमेरिका के लिए और अमेरिका के हितों के लिए भी ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत अहमियत रखती है। तस्वीरें इस वक्त दिखाई जा रही हैं, ये दोनों की व्हाइट हाउस के भीतर की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जुड़ गई हैं, उनसे भी बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में। स्मृति जी, हमें तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं, द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ये जो बातचीत है उन्हें उम्मीद है इससे पहले भी सकारात्मक माहौल में होती रही है, आज भी बहुत सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी और भारत बहुत कुछ हासिल करेगा। लेकिन भारत ही नहीं, अमेरिका को भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अमेरिका भी बहुत कुछ हासिल करेगा भारत के साथ इस समझौते से। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखे जाने चाहिए। ये मात्र रक्षा संबंध नहीं है, मात्र सिक्योरिटी कोऑपरेशन की दृष्टि से हम ना देखें इसको। आज हमारी अर्थव्यवस्था में विविध ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसे नए मुकाम हैं जिसको हम अमेरिका के साथ नई उपलब्धियों की दृष्टि से पा सकते हैं। जैसे कि आप एआई का विषय देख लीजिए, आप क्वांटम कंप्यूटिंग का विषय देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी का विषय देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हिंदुस्तान ने प्रेषित किया है, उसके संदर्भ में टेक्नोलॉजी का विषय देख लीजिए, या सेमीकंडक्टर का विषय देख लीजिए, जिसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने पीएलआई की एक नई व्यवस्था बना दी है। मुझे लगता है कि चाहे वो साइंस हो, प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो इनोवेशन हो या डिफेंस हो, हिंदुस्तान के लिए कई नए अपॉर्चुनिटीज हैं। अब अमेरिकी निवेशक, अमेरिकी कंपनीज और अमेरिकी सरकार के साथ नए आर्थिक अवसर अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्रवासियों के लिए प्रस्तुत करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि जो बाइडेन ने भी ये कहा कि हम एक ऐसे क्षण में खड़े हैं जो कई सदियों में आता है, कई पीढ़ियों में एक ऐसा क्षण आता है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यानी भारत और अमेरिका के संबंध भी और दुनिया भी। क्या अमेरिका को भी एहसास है इस बात का? क्योंकि देखिए, जिस तरह की इस वक्त वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बनी हुई है, वैसे में भारत एक स्थिरता प्रदान करता है। क्या इसका एहसास अमेरिका को भी है और उस दिशा में हमारा सहयोग और बढ़ सकता है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एहसास सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे विश्व को हुआ जब कोविड की परिस्थिति विश्व के सम्मुख निर्मित हुई। आपको याद होगा कि सारी ही राष्ट्रीय इकोनॉमीज, इकाइयां लॉकडाउन की स्थिति में आ चुकी थी। कई राष्ट्रों में इस बात की चर्चा थी कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी में वैक्सीन कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। हिंदुस्तान ने टेक्नोलॉजी कोविन ऐप के माध्यम से वैक्सीन डिप्लॉयमेंट की, जहां पर विकसित राष्ट्र कागज कलम के माध्यम से अपनी वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट कर रहे थे। हिंदुस्तान कैसे वैक्सीन उपलब्ध कराएगा अपने देशवासियों को, उस प्रश्न का उत्तर हिंदुस्तान खुद बना जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन हम अपने देश में अपने देशवासियों के लिए बनाएंगे। 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 160 राष्ट्रों की मदद की। पापुआ न्यू गिनी में आपने देखा जैसे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रधानमंत्री मोदी के पांव छूकर उनका स्वागत किया। वो भावना थी कि जब मौत मंडरा रही थी सर पर, तब हिंदुस्तान ने समाधान प्रस्तुत किया था पापुआ न्यू गिनी जैसे राष्ट्रों को। तो चाहे वो समुद्री द्वीपों के राष्ट्र हों, चाहे वो अफ्रीकन नेशन के संबद्ध कुछ चर्चाएं हो, हिंदुस्तान ने हमेशा उपलब्धियों के दौर में भी मानवीय एक रूप इख्तियार किया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और आज अमेरिका जैसी व्यवस्थाएं या फिर आर्थिक जो हमारी इकाइयां हैं, वो समझते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी के अधीन होती जा रही है, वैसे वैसे हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। स्मृति जी, आपको कम दर पर टेक्नोलॉजी चाहिए तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को अपनाइए, ये विश्व अब जान चुका है। जी स्मृति जी, आपको हम सुनवाते भी हैं इस वक्त, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। आपसे और भी कुछ बात अहम करनी है और जानना है बहुत कुछ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कैसे हम देख रहे हैं और क्या उसके अहम बिंदु हैं, क्योंकि बातचीत जो इस समय उनकी शुरू हुई है उसका भी कुछ अंश आपको सुनवाएंगे। सुनिए क्या बातचीत शुरू हुई है और फिर उसके बाद बात करते हैं। Okay. Thank you for being here. Welcome back to the White House.
almost exactly 10 years ago, when I visited Mumbai as Vice President, I emphasized how important it was for India and the United States to continue building the partnership, small steps at a time. 10 साल पहले एक जब मैं इंडिया गया था मुंबई में, तो मैंने कहा कि भारत और अमेरिका के लिए इतना जरूरी है कि एक एक कदम करके हम अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाते जाएं। Over that past 10 years, those small steps have transformed into large progress. और अब समय के साथ साथ वो जो छोटे-छोटे कदम हमने उठाए वो बहुत बड़ी प्रगति का रूप ले चुके हैं। And today, the partnership between our countries is stronger than it's ever been. और आज हम दोनों देशों के बीच में जो भागीदारी है पहले से कहीं अधिक मजबूत है। We see it in our major defense partnership, now a pillar of Indo-Pacific peace and security structure. और हम देख रहे हैं अपनी स्ट्रीट्स में शांति के रूप में भी और अपने डिफेंस के रूप में भी। We see it in our economic ties and efforts to promote inclusive economic growth for our people and quite frankly. स्मृति जी जिक्र कर रहे थे जो बाइडेन की कैसे वो बहुत सालों पहले मुंबई आए थे, भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र उन्होंने किया, भारत के साथ संबंध कैसे बेहतर होते हैं उसका जिक्र किया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगी उसके भी बारे में जिसका उन्होंने कुछ समय पहले व्हाइट हाउस के लॉन से जिक्र किया कि कैसे जो भारतवंशी हैं, भारतीय अमेरिकी हैं, वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए जो योगदान दे रहे हैं और जिस तरह का परिश्रम वो करते हैं, जो कमला हैरिस के रूप में उन्हें रोज व्हाइट हाउस में दिखाई देता है, क्या वो भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोले गए हैं, क्या वो भी बहुत अहम संकेत है भारत की उभरती हुई ताकत के तौर पर या भारत के उस मुकाम को दुनिया स्वीकार कर रही है जो आज हमने हासिल किया? 40 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी आज अमेरिका में सबसे बड़ा डायस्पोरा बन चुके हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव है, अमेरिकी सामाजिक स्ट्रक्चर्स पर उनका प्रभाव है और निश्चित रूप से अमेरिकी राजनीति पर भी उनका प्रभाव है। तो आज जब व्हाइट हाउस के दरवाजे हिंदुस्तानियों के लिए खुले हैं तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के बढ़ते प्रभाव का वो सबसे बड़ा प्रतीक और परिणाम है। ये वही व्हाइट हाउस है जहां पर अब दिवाली भी मनाई जाती है, ये वही व्हाइट हाउस है जहां पर कई भारतीय जो हमारी अलग अलग त्योहार हैं उस पर हमारे त्योहारों का वर्णन भी किया जाता है, ये वही व्हाइट हाउस है जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गरबा भी प्रस्तुत किया गया, ये वही व्हाइट हाउस है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को जो गिफ्ट दिया, जो तोहफा दिया, वो अपने आप में भारत की विविध विशिष्टताओं को प्रस्तुत करता है। बॉक्स था चंदन का, जो चंदन की लकड़ी आई मैसूर से, कारीगरी हुई जयपुर के हमारे कारीगरों द्वारा, उसमें चावल था उत्तराखंड का, नमक था गुजरात का, चांदी था पश्चिम बंगाल का, उसमें तिल का दाना था तमिलनाडु से, गुड़ था महाराष्ट्र से। मतलब अलग अलग हिंदुस्तान की क्या विशेषताएं जो एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं उसका भी दर्पण आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के एक गिफ्ट से अमेरिका के सामने प्रस्तुत कर दिया। श्रीमती बाइडेन को एक ग्रीन डायमंड दिया गया। आप जानते हैं कि हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में डायमंड पॉलिशिंग, डायमंड एक्सपोर्ट हमारा सबसे बड़ा व्यापार है हमारे देश का, जिसकी वजह से देश ने अपना एक अनोखा स्थान विश्व पटल पे बनाया है। अब लैब ग्रोन डायमंड्स भी नई अपॉर्चुनिटीज प्रस्तुत कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये यात्रा में एक एक कदम है वो हिंदुस्तान की काबिलियत को दर्शाने वाला और उस काबिलियत के आधार पर नव भारत के निर्माण में दोनों देशों के संबंध की वजह से क्या और हम योगदान दे सकते हैं, उस पथ पे चलने वाला ये एक अनोखी यात्रा का अंश है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी ऐसा लगता है कि जो बाइडेन भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि 40 लाख भारतीय हैं वहां पर, उनकी लोकप्रियता का भी मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि थोड़ा फायदा उठाया जाए अपनी राजनीति के लिए भी। ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक ये पहलू भी है। मैं ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा कोई मैं ना विश्लेषण दे सकती हूँ ना टिप्पणी कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कहा गया था, ही इज द बॉस। अगर भारतीय मूल निवासी जो हैं उनको आकृष्ट करना है तो कोई भी विदेशी राजनेता जानता है कि मोदी है साथ में तो मुमकिन है। बहुत शुक्रिया स्मृति जी, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शुरुआत में आपको सुनवाते हैं। और जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है, आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महात्म्य को
बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरह से जो बाइडेन की जो व्यक्तिगत संबंध है भारत के साथ और लंबे समय से रहे, उसका उन्होंने जिक्र किया। इस पर बात करते हैं। निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। निशांत, आप मौजूद थे तब जबकि ये मुलाकात की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही इसके दौरान। अगर आप बता पाएं कि क्या कुछ हुआ जैसे ही शुरुआत हुई इस द्विपक्षीय वार्ता की। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। बाइडेन साहब ने मोदी जी को बड़ी तारीफ करते हुए कहा दैट यू आर होस्टिंग G20 नंबर 1। ये उन्होंने उसको बड़ा, और इस पर मैंने देखा प्रधानमंत्री ने खुद नोट किया। अंदर के विजुअल्स हमने आपको भेजे, आप उसको बगल में प्ले कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी, दोनों का जो फोकस था सुमेरा, दोनों का जो इम्पेटस था उसको देखिए। एक तरफ बात कर रहे हैं जो बाइडेन ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, प्रोग्रेस की, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की। प्रधानमंत्री ने फिर अपने बायलैटरल्स में उनसे मुलाकात में जो स्टार्टिंग में हुए हैं, जिसके लिए हमें एक्सेस मिलना था क्योंकि बातचीत अभी करीब 1.5 घंटा चलेगी। अभी करीब 12:30 बजे वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो हम आपको लेकर आएंगे 12:45 या 12:30 बजे अमेरिका के टाइम पर। और अभी मैं समझ सकता हूँ कि आपके वहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो ये अभी इस वक्त 11 बज रहा है। करीब 1.25 घंटे, पौने 2 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 8:45 बज रहे हैं इंडिया में। लेकिन सुमेरा, जो बड़ी बात है, बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री ने फिर से कहा, और जो उन्होंने लॉन्च में कहा था, उन्होंने फिर से कहा कि देखिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे जो भारतीय हैं, इंडियन कम्युनिटी को आज आपने जिस तरीके से वेलकम किया है और आपने सुनी हमारी इंडियन कम्युनिटी की दहाड़ किस तरीके से, तो वो दिखाना चाह रहे थे। देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया, क्या बातचीत हुई, क्या चीज़ें हुई, वो तो आप बाइट्स में प्ले कर देंगे। लेकिन जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि प्रधानमंत्री एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, हमारे पास जो मैन पावर है, हमारे पास जो यहाँ पर शक्ति है, जो कम्युनिटी की शक्ति यहाँ पर है, जो इंडिया में शक्ति है, उसको अब दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। वी आर राइट देयर, और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो शायद मेरा एक्सप्रेशन है, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब दोनों के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसके बारे में आपने एक थोड़ा सा प्रीकर्सर सुना जब जो बाइडेन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इंडो पैसिफिक के को लेकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने क्वाड की जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरीके से ये बड़ी बात है। उन्होंने एक और चीज़ जो जिक्र किया वो ये थे कि दोनों देशों को मिलकर पीस की बात करनी चाहिए, और उन्होंने यूक्रेन का भी जिक्र किया। देखिए, क्या है, अमेरिका में इलेक्शंस हैं। अमेरिका में इलेक्शंस के बाद अभी के जो हालात हैं उनको लेकर अमेरिका के लिए बिजनेस बहुत ज़रूरी है, अमेरिका के लिए पीस बहुत ज़रूरी है, और इन सभी इश्यूज़ को लेकर भारत एक गो टू कंट्री दिखाई दे रहा है, अगर मैं इनकी बात करूं तो। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो हिस्सा हमने सुना है, अभी और विस्तार से हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने ये जो कहा, उसमें उन्होंने कहा कि कैसे जो बाइडेन व्यक्तिगत तौर पर बहुत इंटरेस्ट उन्होंने लिया है भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए। क्या उनकी तरफ से ज़्यादा एक सकारात्मक कोशिश है जो बाइडेन की तरफ से? उनको लगता है कि उनकी विदेश नीति में भारत एक अहम हिस्सा है, भारत के साथ संबंध एक अहम हिस्सा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, क्या है, भारत और अमेरिका के बीच की जो दरार थी वो थी पाकिस्तान। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रुख करता था, लेकिन चाइना की एंट्री होने के बाद से अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा लग चुका है कि पाकिस्तान इज़ अ गॉन केस। तो अब आप उसको हटा दीजिए। जब आप उसको हटा देते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच में व्हाट आर द थॉर्न्स इन द रिलेशनशिप? वर्चुअली नथिंग। बट अगर आप देखें कि दोनों के देशों में समानताएं क्या क्या हैं, दे आर अ नेचुरल अलाई। भारतीय समुदाय की तरफ से प्रधानमंत्री बार बार ये बोल रहे हैं दैट वी आर अ नेचुरल अलाई, और खुद जो बाइडेन ने ये बात बोला। नेचुरल क्यों?
दोनों ही मुल्क डेमोक्रेटिक वैल्यूज से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही मुल्क अपनी कंट्री के लोगों को, सिटीजन्स को, कम्युनिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो उस लिहाज से इस नेचुरल अलायंस को अब आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी किसी का साथ देता है खुलकर, अगर वो कंट्री ऑन अ पॉजिटिव नोट आगे बढ़ रही है तो हमारे सामने एग्जाम्पल है साउथ कोरिया का, जापान का, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल है पाकिस्तान का भी। लेकिन यहाँ पर अगर इंडो पैसिफिक की बात की जाए, इंडो पैसिफिक में बहुत ज़रूरी है भारत की प्रेजेंस और भारत का साथ अमेरिका के लिए। बहुत ज़रूरी है क्वाड में भारत की कोशिश, भारत का प्रयास बहुत ज़रूरी है, जो अभी ग्लोबली जितनी तरीके से एक मोशन हुआ है उसमें भारत का, क्योंकि भारत इज इन टॉकिंग टर्म्स विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो इस लिहाज से भारत की बहुत ज़रूरत है। और अब जो बातचीत आप देखेंगे, देखिए बिजनेस की जो भी बातचीत है वो कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर अमेरिका कह रहा है कि वो काउंसलेट अहमदाबाद और बैंगलोर में खोल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बैक टू यू सुमेरा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया निशांत। वापस आपका रुख करते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं। पीके सर, ये जो अभी बात हो रही है कि जिसका जिक्र बार बार जो बाइडेन कर रहे हैं, जिसमें वो क्वाड और इंडो पैसिफिक का जिक्र कर रहे हैं, भारत की, और भारत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, यानी एक मजबूत स्थिति में है भारत जहाँ से वो बात कर रहा है। तो क्वाड की अहमियत भारत के लिए भी बहुत है, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है इंडो पैसिफिक में भारत का सहयोग। बिल्कुल सही है सुमेरा जी। ये जो क्वाड वाला एस्पेक्ट है या पक्ष है, वो एक भारत को मजबूत स्थिति में करता है। किसी भी देश की जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है वो उसकी ज्योग्राफी से बहुत गवर्न होती है। अगर आप देखिए, पहले जब अमेरिका को अफ़गानिस्तान में ज़रूरत थी तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी डिक्टेट करती थी कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब तक चाइना को वो अपने एक पार्टनर की तरह देखते थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट किया। अब चाइना का जब राइज़ हुआ और चाइना की जिस शी की प्रेसिडेंसी के बाद से जो चाइना में एग्रेसिवनेस आई और ताइवान के प्रति जो उसका रुख हुआ और साउथ चाइना सी में जो उसका रुख हुआ और इंडो पैसिफिक में जो रुख हुआ, तो ये एक सोचने वाली बात हो गई स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस वजह से इसकी अहमियत, सर आपको रोक रही हूँ, इस वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्वाड की अहमियत बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरत है दुनिया के लिए। और ये कहा भी, जो बाइडेन ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध दुनिया में स्थिरता लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोनों लोकतंत्र हैं, वी द पीपल की बात करते हैं, इसका जिक्र दोनों ने किया, प्रधानमंत्री ने भी और जो बाइडेन ने भी। रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं और निशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं व्हाइट हाउस से, साथ ही हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, रुके उससे पहले रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, बायलैटरल की शुरुआत हो चुकी है, द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है, और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडेन ने, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो जो पोर्टस है, हमारे जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने G20 के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग G20। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है, आपका देश जो है, हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की साझेदारी की हम बात कर रहे हैं, हम दोनों डेमोक्रेसीज मिल के साथ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो दोनों देश के लिए, दुनिया की प्रगति के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब हम ओवल ऑफिस के अंदर थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने भी धन्यवाद दिया, इस ग्रैंड वेलकम के लिए धन्यवाद दिया प्रेसिडेंट बाइडेन का। और वही सारी बातें जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की उन्होंने बात की। उन्होंने ये बात भी की कि दोनों देश के जो गोल्स हैं, दोनों देश के जो एम्स हैं, वो यूनिक नहीं, वो अलग है, और इसके लिए दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे ओवल ऑफिस के अंदर, जब दोनों एक दूसरे के लिए इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे रहे थे, तो जो बाइडेन ने इस बात को भी कहा कि ये हमारी जो दोनों की सबसे बड़ी ग्लोबल सिनेरियो के लिए हमारी जो डेमोक्रेसीज है उसका बहुत महत्व है, और स्पेशली आज की दुनिया में इसका बहुत महत्व है। तो कहीं ना कहीं देखिए सुमेरा, हमारे पास हम बातें कर रहे थे, वही बात है हमारे दोनों देश के लीडर। बिल्कुल बिल्कुल वही बात जो बाइडेन ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही कि कैसे भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखते हैं।